Yeah, hello students, and in this lecture, in this video tutorial, we are going to discuss about alcohol abuse and alcohol addiction. So first I will be telling you that what form of alcohol has been generally abused, then how alcohol is produced, a very brief idea, then where alcohol has been absorbed, what actually is alcohol abuse, what happened to our body when we take alcohol, and then one by one what are the ill effect of alcohol and how different organs in our body is affected by alcohol. So let us start our lecture, and title of lecture would be alcohol addiction or abuse. So very first concept, that in what form our body or users, those alcoholics used to addict or used to abuse alcohol. So generally alcohol has been abused in form of ethanol, and alcohol refers to ethyl alcohol और ethanol. हमने पढ़ा था एंजाइमोलॉजी में, methanol is poisonous. See, ethanol is not good for body as well, but that is the commonest form of alcohol which has been abused. So first let us discuss about the source of alcohol, how alcohol is manufactured. Alcohol is manufactured by the fermentation of sugar. Alcohol is manufactured by the fermentation, manufactured by fermentation of sugar. You better know about yeast and zymase, fermentation of sugar. So generally if I am having a sugar molecule here, sugar molecule stand for glucose molecule C6H12O6. Then if I am treating it with zymase inside yeast, the product which is formed, there would be two molecule of carbon dioxide plus C2H5OH which has been produced. Both would be having two molecules here. So ethyl alcohol is actually produced by the fermentation of sugar. Ethyl alcohol is actually produced by the fermentation of sugar. Industrial alcohol is obtained by fermentation of a yeast or fermentation of starchy grain by the yeast Saccharomyces cerevisiae. If you have been asked how industrial alcohol is produced, industrial alcohol, it has been produced by fermentation of starchy grains by a yeast, and name of that yeast is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is the yeast which has been commonly used in industries for the production of alcohol. जनरली याद रखना, ये जो फर्मेंटेशन होता है ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक अल्कोहल 15% प्रोड्यूस नहीं हो पाता. दिस फर्मेंटेशन इट कंटिन्यूज until the alcohol is produced up to 15%, and once 15% of alcohol is produced, it would start reversely inhibiting the fermentation process. Overall production would be about 15% only. इसका yield 15% से ज़्यादा नहीं होता है, and eventually वो आपको फिर allosteric inhibition दिखाना शुरू कर देता है. ये तो हो गया आपका सोर्स ऑफ अल्कोहल के बारे में और कैसे अल्कोहल अब्यूज़ किया जाता है, कैसे अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है. अब पढ़ते हैं बच्चों अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में. सी अल्कोहल अब्यूज़ को आप डिफाइन करेंगे, ड्रिंकिंग एक्सेस अल्कोहल दैट इम्पेयर्स one's psychological, physiological, physical functioning of body. WHO in the year 1964 have declared alcoholism as a disease.
So when we talk about alcohol abuse, if I tell you the definition of alcohol abuse, intake of excessive dose of alcohol which impairs the physical, physiological and psychological functioning of body, that is what we call alcohol abuse. Alcohol abuse, it refers to excessive intake of alcohol, drinking of alcohol, intake of alcohol which impairs one's physical, physiological and psychological state of body or functions of body, state of body, or let's call that functions of body. और आप याद रखेंगे इन द ईयर 1964 WHO declares alcoholism, WHO declares alcoholism as a disease. So alcoholism is a disease which can result in the impairment of physical, physiological and psychological functioning of the body. Then let me tell you, when somebody drink alcohol, where alcohol is absorbed, alcohol start absorbing in the mucous membrane, then some amount of alcohol is absorbed in esophagus, some amount of alcohol is also absorbed in stomach, majority of amount of alcohol is absorbed in small intestine and moderate amount of alcohol is absorbed in large intestine. So absorption, it would be mucosa of buccal cavity, or I will mention mucous membrane. It would be mucous membrane. Alcohol is, some amount of alcohol is also absorbed in esophagus. Then stomach is a site which is worth mentioning here. Stomach is also the site of alcohol absorption. Remember, majority of alcohol, स्टमक में जो सबसे ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो अल्कोहल होता है. स्टमक के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो अल्कोहल होता है. वो अल्कोहल सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है. द मेजर साइट ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट इज़ द मेजर साइट. मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ कि स्टमक में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ अल्कोहल होती है, पर अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. एंड देयर इज़ नो फन इन टेलिंग दैट अल्कोहल इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. सो दीज आर द सर्टेन एरियाज, मॉडरेट अमाउंट वेयर अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड. तो अल्कोहल एब्जॉर्ब होने के बाद पहले लीवर के पास जाएगा, लीवर में फैट सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, फिर अल्कोहल वहाँ से आपके पास लीवर से हार्ट में, हार्ट से उसके बाद लंग्स में, देन हार्ट में, देन ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगा एंड पैथोजेनिसिटी कॉज करेगा. तो बच्चों अब मैं बता देता हूँ आपको व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन समबडी टेक अल्कोहल, एंड आई एम ओनली एंड ओनली हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज, बिलीव मी ऑन दैट. सो व्हाट हैपन्स टू वंस बॉडी व्हेन ही स्टार्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल. अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, कैसे कैसे बात आगे बढ़ेगी वो पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू वंस बॉडी व्हेन ही कंज्यूम अल्कोहल. पहले माना जाता थोड़ा सा कि अल्कोहल ना थोड़ा डोज अल्कोहल का थोड़ा फायदेमंद होता है बॉडी के लिए, पर अभी जितने भी नोटेशन है सब रिजेक्ट हो गए हैं. नॉट अ सिंगल % ऑफ अल्कोहल इज फायदेमंद टू अवर बॉडी. सो व्हाट हैपन्स to body after consuming alcohol. तो एक सिंपल सा है, बस साइकिल शुरू कर देते हैं कि भाई कहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा. अल्कोहल जो है इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग इन म्यूकोजा, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पर एब्जॉर्ब होके
एल्कोहल वुड बी गोइंग टू लीवर, और लीवर में जाके वो सिंथेसिस ऑफ फैट को बढ़ा देता है। तो जो चीज़ आप याद रखोगे, वाया ब्लड व्हेन एल्कोहल गोज टू लिवर, इट इंक्रीजेज फैट सिंथेसिस, इट इंक्रीजेज फैट सिंथेसिस। अभी जब मैं इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लीवर बताऊंगा तो वहाँ पे फैटी लीवर भी इंक्लूड कर लूँगा। देन एक्सिस ऑफ जो फैट होता है, देखो लीवर इज द मेजर साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, और जो एक्सिस ऑफ फैट होता है इट रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एक्सिस ऑफ फैट reduces formation of glycogen and structural proteins, important thing worth remembering। ठीक है बेटा। और क्या करता है अल्कोहल, देखो जो लीवर होता है वो थोड़ा सा उसको हम बोल देते हैं इट इज़ द हाउस ऑफ फैट सिंथेसिस। एक अल्कोहलिक पर्सन का जो लीवर होता है वो फैट सिंथेसिस और फैट स्टोरेज का हाउस बन जाता है। और अल्कोहल लीवर से वाया ब्लड गोज टू हार्ट, वाया ब्लड गोज टू लंग्स, वाया ब्लड कम बैक्स टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। और जहाँ जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा एंड फेक सेंस ऑफ एनर्जी आ जाता है कि थोड़ा सा बॉडी के अंदर वार्मथ आ जाती है। तो फ्रॉम हियर अल्कोहल गोज टू लिवर टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, देन अदर ऑर्गन्स, और उन सब ऑर्गन में जाके वो क्या शुरू करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ, इट एनहांसेस ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के एनहांस होने की वजह से एक फेक सेंस ऑफ वार्मथ आती है, वार्मनेस आती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनर्जी, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन लिबरेशन ऑफ सर्टेन एनर्जी, आई विल से। तो दिस इज व्हाट अल्कोहल डू विद योर बॉडी आफ्टर यू कंज्यूम अल्कोहल। प्लीज याद रखेंगे, एक मिसकंसेप्शन होता है कि अल्कोहल एक स्टिमुलेंट है। नो, alcohol is not a stimulant. Even alcohol is a sedative. Alcohol is a kind of I will say anesthetic. Alcohol is a kind of analgesic. So you will remember alcohol is not over at all. It is not a stimulant. Both mentioning here. Alcohol is not a stimulant. In fact, it is having analgesic, sedative, and last but not the least, an aesthetic properties. Worth mentioning. बहुत बड़ा मिथ होता है कि अल्कोहल एक स्टिमुलेंट है। अनएस्थेटिक का मतलब होता है जब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, यू बेटर नो। सेडेटिव नींद आना, राइट, एंड एनाल्जेसिक इज सेडेटिव, ऐसा नहीं है कि देखो वो हिप्नोटिक होते हैं जिससे नींद आती है, सेडेटिव भी फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। एनाल्जेसिक पेन रिलीवर होते हैं, डैट इज ओके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर मैं बताऊंगा देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच हैज बीन एसोसिएटेड विद अल्कोहल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ problems associated with alcoholic person, associated with alcoholism. He would be having certain social problem, शायद सोशल रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, उसके अपने जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है फैमिलीज़ के अंदर वो ख़राब हो जाएंगे, फैमिली वायलेंस एंड whatsoever. Alcohol is also leading to psychological disturbance, and alcohol is also leading to physical disturbance. तो social, psychological एंड फिजिकल, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स हेयर, क्यों मुझे इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन डिफरेंट ऑर्गन पढ़ाने हैं एंड आई डोंट वांट टू मेक माय लेक्चर ऑफ 2 hours. बट रिमेंबर अल्कोहल की जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं, मेजर इज सोशल प्रॉब्लम, इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज देयर, अल्कोहलिक पर्सन अंडरगो डिप्रेशन वेरी सून, एंड फिजिकल प्रॉब्लम इज देयर. ठीक है बेटा, अब ये तो हो गए जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहलिज्म.
अब जो हमें मेनली पढ़ना था कि अल्कोहलिज्म से हमारे अलग अलग ऑर्गन कैसे अफेक्ट होते हैं, तो अफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज ऑन डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी अब शुरू करते हैं। एंड वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 10 to 15 जितने मुझे याद आएंगे इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन आवर बॉडी ऑर्गन्स, एटलीस्ट 10 to 15, राइट? तो इफेक्ट ऑफ, और लेट अस मेक ए चार्ट हियर, नो नीड टू मेक चार्ट, वन बाय वन आई विल बी मेकिंग ऑल द पॉइंट्स। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज, सबसे पहले शुरू करेंगे न्यूट्रिएंट से, सबसे पहले शुरू करेंगे न्यूट्रिएंट से। जो अल्कोहलिक पर्सन होता है उसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है। तो पहला जो इफेक्ट पढ़ेंगे दैट वुड बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या डेफिशिएंट हो जाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, विटामिन्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, एंड इवन प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएंगे। मिनरल्स, vitamins and proteins. Alcoholic person are mainly deficient in these three things. Alcoholic person are mainly deficient in mineral content, in the vitamin content and in the protein content. First thing, कौन कौन से मिनरल डेफिशिएंट हो जाते हैं? मिनरल की बात करूँ तो देखो अल्कोहलिक के अंदर लो पोटेशियम होता है, लो मैग्नीशियम होगा, लो कैल्शियम होगा, लो जिंक होगा, लो फॉस्फोरस होगा। तो इट इज हैविंग लो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, phosphorus. These are the one which has been जनरली लो। प्रॉब्लम होता रहता है अल्कोहलिक को मैग्नीशियम और पोटेशियम का, तो ठीक है। देन अगर वाइटामिन्स की बात करें, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर वाइटामिन B1, वाइटामिन B3, वाइटामिन B6, फॉलिक एसिड, वाइटामिन C, वाइटामिन A, सर छोड़ा क्या, अभी भी है काफ़ी। दीज आर डेफिशिएंट इन अल्कोहलिक पर्सन। तो अल्कोहलिक पर्सन, अगर मैं वाइटामिन्स की बात करूँ, वाइटामिन B1, B3, B6, B9 is folic acid, and important ones are vitamin C and vitamin A. क्लास 11th में जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, तो आपको वाइटामिन्स पढ़ाए थे, और वाइटामिन जो थायमीन है B1, उसकी डेफिशिएंसी से दो डिजीज़ बताई थी जो अल्कोहलिक के साथ रिलेट की जाती है। मेनली जो अल्कोहल होता है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ B1 को रिटार्ड कर देता है। तो आपको दो कंडीशन बताई थी मैंने, वर्निकेज सिंड्रोम एंड क्वाशाकॉफ सिंड्रोम। वो यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ मैं कि वर्निकेज सिंड्रोम एंड क्वाशाकॉफ साइकोसिस और क्वाशाकॉफ सिंड्रोम इज आल्सो रिलेटेड विद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1. विटामिन B1 डिफिशियंसी रिजल्ट इन वर्निकेज डिजीज एंड द वन मेमोरी लॉस वाली क्वाशाकॉफ साइकोसिस, और लेट्स कॉल दैट क्वाशाकॉफ सिंड्रोम। तो मैं कुछ सिम्टम बता देता हूँ बच्चों आपको वर्निके डिजीज़ के लिए पहले, और फिर बता दूँगा क्वाशाकॉफ के। देखो वर्निकेज डिजीज़ का दूसरा नाम होता है एनसिफेलोपैथी। वो एनसिफेलोपैथी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, आइज़ का पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को, जो भी मूवमेंट होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। आपने पढ़ा था एटैक्सिया इज द लॉस ऑफ मूवमेंट, तो पेशेंट को एटैक्सिया हो जाता है। देन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये चार इफेक्ट याद रख लेना। फर्स्ट वन यू विल बी रिमेंबरिंग, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एनसिफेलोपैथी। मैं लिख ही देता हूँ ना, इट इज़ आल्सो नोन एज एनसिफेलोपैथी, and the Wernicke disease or encephalopathy, it has been characterized by paralysis of eye movement, paralysis of eye movement, स्लो डाउन हो जाते हैं पहले एंड इवेंचुअली जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट एटैक्सिया, जो भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, आपने देखा है ना कि जो अल्कोहल के बाद प्रिसाइज मस्कुलर मूवमेंट नहीं मेंटेन कर पाते, उसका मेजर रीज़न क्या होता है? विटामिन B1 डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द रीजन। पेशेंट इज हैविंग
मेंटल डिस्टर्बेंस। तो जो ये अटैक्सिया वाला है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द वॉलंटरी मूवमेंट, वो याद रखेंगे, डेट इज इंपॉर्टेंट। वर्निके सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय, देखो मैंने बताया तो उस वक्त आपको क्या है ना, मेंटेनेंस ऑफ गेट नहीं हो पाता। गेट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं द वे यू वॉक। तो अगर वॉकिंग जो पोस्चर है वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं तो एक तरह का वर्निके कंडीशन हो गया बेटा। ठीक है बच्चों। सेकेंड होता है क्वाशोकॉफ साइकोसिस। क्वाशोकॉफ साइकोसिस में एक कंडीशन रहती है कि पेशेंट ज़्यादातर कन्फ्यूज़न में रहता है एंड सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाता है जनरली रिसेंट इवेंट्स का। दिस कंडीशन कन्फ्यूज़न एंड सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, और ये जो सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी है डेट इज जनरली ऑफ रिसेंट इवेंट्स, ऑफ रिसेंट इवेंट्स क्वाशोकॉफ सिंड्रोम में। ठीक है, तो बच्चे ये पहला पार्ट हो गया कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट से क्या क्या होता है। मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है और प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकती है। देन वन बाय वन हम ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। और लेट मी टेल यू कि अल्कोहल ब्रेन के लिए स्टिमुलेंट था, डिप्रेसेंट था? डिप्रेसेंट था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्रेन, मैं पहले बता देता हूँ। देखो, ब्रेन पे डिप्रेसेंट का काम करेगा, कुछ ड्रिंक के बाद ही ये है ना स्लीप को डिक्रीज कर देता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, आफ्टर सर्टेन ड्रिंक इट डिक्रीजेज योर स्लीप एज वेल एज जो रैपिड आई मूवमेंट होते हैं उनको कम कर देता है। तो आफ्टर हैविंग सर्टेन ड्रिंक जो भी आई मूवमेंट है वो स्लो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अल्कोहल के बाद रिपीटेड अवेकनिंग रहती है पेशेंट को, एक रेस्टलेसनेस स्लीप आती रहती है और बीच बीच में टूटती रहती है नींद। सबसे पहले जो पार्ट ब्रेन का इफेक्ट होता है वो होता है सेरिब्रम, और सेरिब्रम के इफेक्ट होने के बाद लॉस ऑफ जजमेंट हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, विल पावर ख़त्म हो जाती है, तो जज ही नहीं कर पाते। और दूसरा जो पार्ट इफेक्ट होता है वो होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम के इफेक्ट होने के बाद अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्रेन? लेट मी टेल यू दिस थिंग। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्रेन, second point would be effect of alcohol on brain. Effect on brain, remember alcohol is a depressant। जो सबसे पहले ऑर्गन अफेक्ट होता है, अच्छा वो स्लो डाउन आई मूवमेंट याद रख लेना, एंड स्लोज डाउन रैपिड आई मूवमेंट। देन आप याद रखेंगे फर्स्ट टू बी अफेक्टेड इज सेरिब्रम, एंड देन लेटर इज सेरिबेलम। सेरिब्रम अफेक्ट होगा तो वी बेटर नो लॉस ऑफ जजमेंट हो जाएगा, विल पावर खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ जजमेंट एंड विल पावर, जो भी सेरिब्रम के कंट्रोल फंक्शन थे, और सेरिबेलम में मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन आ जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, ये हो गया इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ब्रेन। तो आपको याद रखना है अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट टू ब्रेन, नॉट ए स्टिमुलेंट। देन लेट मी टेल यू इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन अवर इम्यूनिटी। इफेक्ट ऑफ alcohol on immunity, there is no fun in telling that alcohol lowers down our immunity. Alcohol lowers down our immunity. A person with chronic alcoholism become immunic deficient. देखो एड्स वाला इम्यून डिफिशिएंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर अल्कोहलिज्म में भी इम्यून डिफिशियंसी आपको मिल जाएगी। Then we will be discussing what are the effect of alcohol on cardiovascular system। जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो जो स्मॉल डोज होता है अल्कोहल का, उससे आपके जो ब्लड वेसल होते हैं, मेनली आपकी स्किन वगैरह के जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट कर जाते हैं, ब्लड प्रेशर अफेक्ट नहीं होता है स्मॉल डोज से। फिर अगर मैं एक मॉडरेट डोज की बात करूँ, आफ्टर ए मॉडरेट डोज ऑफ अल्कोहल जनरली पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाता है। और अगर किसी ने हाई डोज ले लिया अल्कोहल का,
a large dose of alcohol can eventually called myocardial infarction. तो जो भी आप पढ़ते हो मायोकार्डियल लॉस ऑफ कंट्रोल और वो वैसोमोटर लॉस ऑफ कंट्रोल और वैसोमोटर सेंटर डिप्रेशन, ये कहाँ से होता है सारा का सारा? अल्कोहल से. सो नेक्स्ट we'll be discussing what are the effect of alcohol on a cardiovascular system. Effect of alcohol on cardiovascular system. Effect on cardiovascular system. तो व्हाट आई टोल्ड यू कि जो इसका कम अमाउंट होता है, जो स्मॉल डोजेज होती हैं, स्मॉल डोजेज दे डायलेट्स अवर ब्लड वेसल, डायलेट्स ब्लड वेसल, मेनली स्किन वाले पेरिफेरल पार्ट की है ब्लड वेसल, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे फ़र्क नहीं पड़ता है. एक जो मॉडरेट डोज होती है वो टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है. टैकीकार्डिया इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट. और जो हैवी डोज होता है, किसी ने मैं क्या बोलूँ 10-15 पैग मार दिए, उस केस में देयर वुड बी अ डिप्रेशन इन द मायोकार्डियल depression, and there would be a depression in the vasomotor center of brain and vasomotor center of brain. तो depression, myocardial depression and depression in vasomotor centers and depression in vasomotor center. तो alcohol is not good for heart, we all know about it. और क्या क्या बताया कि भाई स्मॉल जो है वो डायलेशन कर देता है, जो मॉडरेट ब्लड आपका मॉडरेट अमाउंट है वो क्या कर देगा, डेट वुड बी अंडरगोइंग टैकीकार्डिया, और जो हैवी अमाउंट है वो क्या कर देगा, डेट वुड बी कॉजिंग वैसोमोटर सेंट्रल डिप्रेशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन. एंड अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ, जो लार्ज अमाउंट होता है डोज का, वो ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है. ज़्यादा लंबे टाइम तक अल्कोहल पीने से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है. कार्डियोमायोपैथी, chronic use, heavy also lowers down your blood pressure, and chronic use result in मायो माने मसल, मायोकार्डियम का जो होता है पैथी. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट. हम जानते भी ये हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है अल्कोहलिक को इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अगला सिस्टम. और कुछ बताओ सर्कुलेशन के बारे में. देखो अगर आप रेगुलर इनटेक कर रहे हैं स्मॉल डोजेज का, लेट इट वैसे वो कुछ काम का नहीं है. कि देखो पहले एक मिथ था कि भाई जो स्मॉल डोजेज होते हैं वो ना आपके लिए थोड़ा ठीक होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है. अभी अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज टॉक्सिक टू यू. डू यू नो दैट द कंसेप्ट ऑफ LDL एंड HDL? व्हाट इज HDL? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और उनको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली. एंड व्हाट इज LDL? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उनको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल. अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है. ये एक पहला मिथ था. अभी 2017 में कोई रिसर्च पेपर आया था, उसने वो कर दिया था कि भाई नहीं, अल्कोहल जो है वो LDL HDL में इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है. ऐसा माना जाता था पहले कि अल्कोहल से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है. अभी अल्कोहल हार्मफुल है, आप ये याद रख के चलेंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट effect of alcohol on GIT, effect of alcohol on liver and effect of alcohol on pancreas. GIT के पूरा कर लेते. GIT में हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ लेंगे, लीवर भी पढ़ लेंगे, पैनक्रियाज भी पढ़ लेंगे. ठीक है बेटा. Now let us start about the effect of alcohol on GIT, on gastrointestinal tract. Effect on GIT. So when we start studying the effect of alcohol in GIT, first we will be learning that chronic alcohol can cause inflammation in esophagus. We call that as esophagitis. It can cause inflammation in stomach, gastritis. It can cause vomiting, and that vigorous vomiting can cause longitudinal tear
in the wall of mucosa at gastrointestinal junction, and a longitudinal tear in the wall of mucosa at gastrointestinal junction is known as Mallory-Weiss lesion or Mallory-Weiss syndrome. So when we talk about effect on GIT, you will remember that it can cause esophagitis, inflammation of esophagus. It can cause gastritis, inflammation of stomach. There is no fun in telling that alcohol can stimulate release of gastric juice, and when gastric juice is released, a lot of HCl is produced, and that HCl starts degenerating the cell of gastric wall, or that result in gastric inflammation of gastric wall or gastritis, release of gastric juices, right? Now it can also lead to vigorous vomiting. Patient would be vomiting a lot due to high alcoholism. That irritation in the stomach result in the expulsion of stomach content, and that vigorous vomiting, now this thing is important, it can lead to longitudinal tear in mucosal wall of mucosa of gastrointestinal junction, and this longitudinal tear in the gastrointestinal junction is referred as to Mallory-Weiss lesion or Mallory-Weiss syndrome. It is referred as to Mallory-Weiss lesion को आप जख्म समझ सकते हैं यहाँ पर, और Mallory-Weiss syndrome. अभी मैलोरी हाइलिन भी बताऊंगा जो लीवर के केस में होगा. तो ये 2-3 चीज़ें याद रखेंगे. जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि जीआईटी के ऊपर इसोफेगस इन्फ्लेम हो सकती है, गैस्ट्रिक आपका स्टमक इन्फ्लेम हो सकता है, बाबा वॉमिटिंग होने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द म्यूकोजा हो सकता है. ठीक है बेटा, फिर चलते हैं लीवर के पास. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्रेन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हार्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीआईटी. अभी लीवर, पैनक्रियाज, मसल्स, किडनीज, कुछ और ऑर्गन्स बचे हैं वो भी मैं कवर कर लेता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 6, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लीवर. एंड यू नो अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है वो लीवर के साथ ही होता है. हम सुनते रहते हैं कि ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से उसका लीवर ख़राब हो गया. ठीक है, तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, लेट मी टेल यू. इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लीवर. इफेक्ट ऑन लीवर, देखो अभी जैसे हमने शुरू किया था लेक्चर तो आपको बताया था कि भाई जो लीवर होता है वो मेजर साइट ऑफ फैट सिंथेसिस होता है, और एक्सेसिव क्रोनिक अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हो जाता है. फैटी लीवर का मतलब क्या हुआ कि फैट सिंथेसिस की वजह से, अगर मैं आपको लीवर का वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बना के दिखाऊँ, याद है वो आपने कुछ कहा था कि हेपेटिक लोब्यूल जैसी कोई चीज़ होती है लीवर के अंदर, और हेपेटिक लोब्यूल में कुछ स्पेस होते हैं, ये हेपेटोसाइट्स है, यहाँ पे स्पेस है, और इस स्पेसिस के अंदर खूब सारी फैट सेल्स थे. फैट सिंथेसिस की वजह से ये फैट सेल ज़्यादा एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे. तो जब फैट, आई टोल्ड यू प्रिंसिपल साइट ऑफ फैट स्टोरेज क्या होता है, लीवर. फैट एक्यूमुलेशन की वजह से लीवर फैटी हो जाता है. तो पहला फैटी लीवर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर. सेकेंड जो कंडीशन होता है, हेपेटाइटिस के कई सारे रीज़न होते हैं. हेपेटाइटिस का रीज़न वायरस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस का रीज़न कुछ दवाई या ड्रग्स हो सकते हैं, हेपेटाइटिस का रीज़न एक अल्कोहल भी होता है. सेकंड, इट कैन रिजल्ट फैटी लीवर, इट कैन रिजल्ट, इसको बोलते हैं हेपेटो एडिपोइसिस, इसको बोलते हैं हेपेटो एडिपोइसिस, हेपेटिक एडिपोइसिस. देन देयर कुड बी हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस में याद रखना कि भाई फैटी लीवर के साथ साथ लीवर इन्फ्लेम हो जाता है. लीवर इन्फ्लेम होने की वजह से हेपेटोसाइट डैमेज होने शुरू हो जाती हैं. वो फिब्रोब्लास्ट जो नई हेपेटोसाइट बना रही थी वो डैमेज हो जाती हैं. कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं. कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेट होंगे, हेपेटोसाइट डैमेज हो जाएंगी. जो डैमेज हेपेटोसाइट है उनको सराउंड कर लेते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट.
और उन डैमेज हेपेटोसाइट के अंदर कुछ ईस्नोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं मेलोडी हायलीन ग्रेन्यूल्स। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हेपेटोसाइट्स, हेपेटाइटिस में देयर इज डैमेज ऑफ liver functional cells which we call damaged hepatocytes। अब डैमेज हेपेटोसाइट्स, आपके बॉडी के अंदर कुछ भी कैजुअलिटी हुई है, उस कैजुअलिटी को चेक करने के लिए कुछ इम्यून सेल को भेजोगे वहाँ पर या नहीं भेजोगे। लेट्स से दीज आर द हेपेटोसाइट्स विच आर डैमेज्ड, दीज वर द वन विच आर अंडर अटैक, एंड दीज हेपेटोसाइट्स आर सराउंडेड बाय सम स्पेशल leukocyte, and these special leukocytes are having multiple type of nucleus. What we call that? Polymorphonuclear leukocyte। तो डैमेज हेपेटोसाइट कैसे करेक्टराइज होती है? इट हैज़ बीन सराउंडेड बाई पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब जो डैमेज हेपेटोसाइट होती है इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, एंड दोज ग्रेन्यूल्स आर मास ऑफ ईस्नोफिलिक सेल टू बी वेरी एग्जैक्ट। These granules are derived from the mass of eosinophilic cell. In the damaged or defected hepatocyte, eosinophilic granules has been accumulated, and these mass of eosinophilic granules in the hepatocytes, damaged hepatocytes, are known as Mallory hyaline granules. Or that condition, that damaged hepatocytes are referred as to Mallory hyaline hepatocytes। ठीक है बेटा, इसकी वजह से क्या होगा? आई एम टेलिंग यू, हेपेटोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट जो नए हेपेटोसाइट बनाने वाली थी वो डैमेज हो जाती हैं, कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेशन। अब कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेशन की वजह से लीवर श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिरोसिस। द थर्ड कंडीशन वुड बी लीवर सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस। हेपेटिक सिरोसिस में लीवर श्रिंक इन साइज, लीवर श्रिंक इन साइज, एंड लीवर बिकम वेरी वेरी हार्ड, एंड बिकम हार्ड। Why it has been becoming hard? Due to deposition of collagen fiber, destruction of hepatocyte, destruction of fibroblast, liver shrink in size. Eventually that duct which was carrying bile from the liver to gallbladder, from gallbladder to intestine, that has been blocked. A blockage of bile duct is known as cholestasis. So there would be blockage of bile duct, cholestasis. तो जब हम लीवर पे इफेक्ट पड़ते हैं, फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर अगर पर्सन इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट, इट वुड लीड टू हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज द मेजर साइन ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर होने वाला है, एंड डैमेज ऑफ डक्ट इज देयर विच वी कॉल कॉलिस्टेसिस। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन किडनीज? नहीं, पहले लीवर पैनक्रिया वाली बात भी लिख देता हूँ। अगर मैं इफेक्ट ऑन पैनक्रिया की बात करूँ, effect on pancreas, I will be finishing that in one line only. It result in pancreatitis. Effect on pancreas, it result in pancreatitis. Pancreas, the effect of alcohol on pancreas is inflammation of pancreas, and inflammation of pancreas is referred as to pancreatitis. और inflammation ना हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बच्चों। तो pancreatitis is generally shown in an alcoholic person। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब इन अल्कोहलिक पर्सन की किडनी वगैरह देख लेते हैं। किडनी पे क्या इफेक्ट होगा? अल्कोहल एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, जो सब लोगों को पता है। तो किडनी के ऊपर क्या करेगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा ये। इफेक्ट ऑन किडनीज, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन किडनीज? इट ब्लॉक द साइट ऑन विच ADH was acting. Alcohol suppresses release of ADH, which eventually reduces the reabsorption of water, and a lot of water has been coming in urine. That condition is known as diuresis. So what alcohol do with your kidney? Alcohol result in diuresis. ADH release कम हो जाता है, ADH बाइंड ही नहीं कर पा रहा है DCT और कनेक्टिंग डक्ट पर, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एंड लॉट ऑफ वाटर हैज बीन लॉस्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन मसल्स। इफेक्ट ऑन मसल्स, आप याद रखना, अल्कोहल रिजल्ट इन मायोपैथी।
एल्कोहलिक मायोपैथी कहते हैं। पैथी स्टैंड फॉर पैथोलॉजी एंड मायो फॉर मसल। एल्कोहल के केस में सीरम लेवल ऑफ फोस्फोक्रिएटिन काइनेज और क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज टू बी वेरी एग्जैक्ट, उसका लेवल बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सीरम क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज। आपको पता होगा ये जो एंजाइम होता है ये बॉडी की बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, और जो वो क्रिएटिन फॉस्फेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना होता है वो इस एंजाइम के डिपेंडेंट होता है। तो मसल्स आप मतलब अल्कोहल लेने के बाद अगर आपका ये एंजाइम का लेवल बढ़ गया है तो ऐसा लगेगा आपका मसल ऑल द टाइम स्ट्रेस एक्सरसाइज कर रहा है। लेथर्जी एंड फैटीग कॉमन देयर। ठीक है बेटा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इरेथ्रोपोइसिस? इफेक्ट ऑन ब्लड सेल इरेथ्रोपोइसिस। आप याद रखेंगे अल्कोहलिज्म के बाद जो साइज ऑफ ब्लड सेल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और नंबर ऑफ ब्लड सेल भी बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड साइज ऑफ ब्लड सेल, इनकी साइज होता है। नंबर ऑफ सेल की जब बात करते हैं तो अल्कोहलिज्म में एनीमिया हो जाता है। इंक्रीज साइज एंड रिडक्शन इन नंबर, रिडक्शन इन नंबर, तो डेट रिजल्ट इन एनीमिया। ठीक है बेटा, और कौन सा ऑर्गन बचा है आपका? ब्रेन इज डन, यूर जीआईटी इज डन, किडनी डन। रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट, याद रखना रेस्पिरेटरी सेंटर पे अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अल्कोहल कॉजेज इनफर्टिलिटी, इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी। आप याद रखेंगे मेल्स के केस में अल्कोहलिज्म की वजह से इन मेल्स देयर इज श्रिंकेज ऑफ टेस्टिकल, श्रिंकेज ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिकल श्रिंक हो जाएंगे तो रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट हो जाएगा, देयर इज रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट, तो फर्टिलिटी वगैरह वैसे ही कम हो जाती है। फीमेल्स के केस में भी ओवरी श्रिंक हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाती है, तो अल्कोहल इवेंचुअली रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट विद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। नेक्स्ट वुड बी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल अल्कोहल एडिक्ट है, अल्कोहलिज्म की एडिक्ट है, तो ऑनगोइंग फीटस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो उसके ना डिफॉर्मिटीज इन फेस आना शुरू हो जाता है, उसके ना टीथ प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, उनके ऊपर एनेमल नहीं होता है, उसके जो ईयर पिन्ना होते हैं वो रिड्यूसली डेवलप होते हैं। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और FAS, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय फेशियल डिफॉर्मिटीज, facial deformities, poorly developed concave and reduced teeth development. It could be without ear pinna as well. It could be without enamel as well, without enamel. तो ईयर पिना कम डेवलप हो सकता है, फेशियल डिफॉर्मिटीज़ होती है, जो आपका टीथ डेवलपमेंट होता है वो कम होता है, डैट इज़ रेफर्ड एज टू फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो ये इन जनरल हो गया कि भाई अल्कोहल हमारे बॉडी के किस पार्ट को कैसे कैसे अफेक्ट करता है। आप सुनते रहते हैं कि ये बहुत कॉमन है, आपको डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि अल्कोहल के साथ आपके जो कोऑर्डिनेशन है वो कम हो जाता है, आपका जो जजमेंट पावर है वो कम हो जाती है, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, आप यही जज नहीं कर पाते कि मेरी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना दूर है, मुझे कितने ब्रेक लगाने चाहिए। जब तक आपको ये एहसास हो पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है, इसलिए हमेशा कहा जाता है प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाई इट हैज़ बीन सेड नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव, तो आप लिख देंगे वहाँ पर कि इसी जजमेंट पावर अफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ योर हैंड्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ योर ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके विज़न को ब्लड बना देता है, आपका जो भी जजमेंट पावर होता है वो कम हो जाता है, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। देन अल्कोहल को छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको क्या नाम है, यू विल बी हैविंग दैट डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज़,
कई बार ना ट्रैंक्यूलाइजर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं विड्रॉल सिम्टम को ओवरकम करने के लिए। बेंजोडाइएज़ेपाइंस मेजर वन यूज़ करते हैं, कई बार फिनोथाइएजाइंस भी कर लेते हैं। डाइसल्फिरम एक आपका सबसे कॉमन ड्रग होता है जो आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में देते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट और बचता है कि अगर आप कोई भी एब्यूजिव ड्रग का मतलब ये हुआ जिसके जो नॉन मेडिकल यूज़ में कर रहे हैं, अगर आप नॉन मेडिकली किसी ड्रग को यूज़ करते हैं, उसको अल्कोहल के साथ ले लेते हैं, तो उसके साथ क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारबिटूरेट्स को अल्कोहल के साथ ले लें तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट। अगर बारबिटूरेट्स क्या था बेटा, दे आर स्लीपिंग पिल, अगर अल्कोहल के साथ ले लिया तो उनका जो इफेक्ट है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बारबिटूरेट्स आर काइंड ऑफ डिप्रेसेंट। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं इंटरेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस का, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस, विच सब्सटेंसेस which are abusive in nature, which are not abusive, which has been generally abused. Interaction of alcohol with other substances, interaction of alcohol with other substances, कि अगर कोई भी abusive ड्रग पानी लाइक आपने इंजेक्ट ना करके अल्कोहल के साथ ले लिया तो क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली सबके जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंट्रैक्शन of alcohol with other abusive drugs, सबसे पहले पढ़ते हैं बारबिटूरेट्स इफ टेकन विद अल्कोहल। तो आप याद रख लेना इनका जो भी इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। अगर बारबिटूरेट स्लीपिंग पिल बताया था ना मैंने, तो स्लीपिंग पिल विद अल्कोहल अगर ले लेता है कोई तो ड्रामेटिकली डिप्रेसेंट इफेक्ट आता है, ड्रामेटिकली इंक्रीज डिप्रेसेंट इफेक्ट। इट वुड बी शोइंग ड्रामेटिकली इंक्रीज डिप्रेसेंट इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। फिर आपके पास केस आया कि आप ना यार एंटीहिस्टामिन्स आर काइंड ऑफ एंटी एलर्जिक ड्रग, और अगर आप नॉन मेडिकेटेड यूज़ ले रहे हैं तो फिर एंटीहिस्टामिन अब्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर एंटीहिस्टामिन्स को आपने अल्कोहल के साथ ले लिया तो क्या होगा। एक वर्ड होता है ड्राउसीनेस का मतलब होता है कि आप बहुत थका फील करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स विद अल्कोहल कॉजेज मार्क्ड ड्राउसीनेस, एंटीहिस्टामिन विद अल्कोहल कॉजेज मार्क्ड ड्राउसीनेस, ठीक है। Second drug, let's say antihistamines with alcohol, it causes marked, जनरली इसका कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं होता एंटीहिस्टामिन का, अल्कोहल के साथ मार्क्ड ड्राउसीनेस। इज दैट क्लियर बेटा? देन और क्या क्या आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हो सकते हैं अल्कोहल के साथ। फॉर एग्जांपल बारबिटूरेट्स की जगह किसी ने बेंजोडाइएज़ेपिन्स ले ली, अगर बारबिटूरेट्स की जगह बेंजोडाइएज़ेपिन्स ले ली। बेंजोडाइएज़ेपिन्स काहे के लिए पढ़ाई थी? इट्स काइंड ऑफ माइनर ट्रैंक्यूलाइजर जो एंजाइटी वगैरह कम करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। अल्कोहल के साथ वो सेडेटिव्स हो जाती हैं, अल्कोहल के साथ वो सेडेटिव हो जाती हैं, और जनरली उनका जो इफेक्ट होता है वो ड्रामेटिक होता है। कई दिनों तक बेहोश पड़ा हुआ है पेशेंट, कई दिनों तक पेशेंट बेहोश रहता है। सो बेंजोडाइएज़ेपाइंस बताए ये ना अल्कोहल के विड्रॉल इफेक्ट के काउंटर बैलेंस के लिए होती है मेनली। अगर आप इसको ले लो विद अल्कोहल, दे बिकम सेडेटिव इन नेचर एंड दैट सेडेशन इज ऑफन ड्रामेटिक। एज आई एम टेलिंग यू, कई दिनों तक पेशेंट को होश नहीं आता है अगर ज़्यादा ये डोज हो जाए। कोई पेशेंट था वो ना हेलुसिनेशन ले रहा था, उसने हशीश लिया या मैरिजुआना लिया और उसने अल्कोहल के साथ ले लिया। तो हशीश और मैरिजुआना तो पहले ही हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, अल्कोहल के साथ जो उनके इफेक्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस पेशेंट के जितने भी कोऑर्डिनेशन होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, उसकी जो जजमेंट पावर होगी वो सब खत्म हो जाएगी। हेलुसिनेशन यू बेटर नो आपका किस टाइप की कंडीशन डेवलप हो जाती है। सो डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, डिक्रीज जजमेंट पावर, increase reaction time would be the effect of alcohol plus hashish or marijuana,
मैरीजुएना प्लस अल्कोहल, क्या क्या याद रखेंगे इसमें? रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, आपको 4 बार कोई टच करेगा तब फील करोगे टच शायद, राइट। जजमेंट पावर, कोऑर्डिनेशन कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेशन with the environment actually, coordination with your body, hands and everything, and judgment power, सभी के ना मार्क्ड ही याद रख लेना। फिर एक दो और बचते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप एस्प्रिन एक पेन किलर होता है और अल्कोहल के साथ अगर आप एस्प्रिन ले ले तो क्या होगा, उसका सबसे बड़ा होता है जो भी गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है उसको डैमेज कर देता है। तो एस्प्रिन विद अल्कोहल कैन कॉज डैमेज ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। एस्प्रिन विद अल्कोहल, एस्प्रिन विद अल्कोहल, एस्प्रिन विद aspirin with alcohol can cause damage to gastric mucosa, can cause damage to gastric mucosa। अब अगर आप बेंजोडाइएज़ेपाइन्स और बार्बिटूरेट्स दोनों को साथ में लेते तो देयर इज नो फन इन टेलिंग कि उनका सेडेशन बढ़ जाएगा। बार्बिटूरेट्स तो पहले स्लीपिंग पिल थी। अगर आपने इंसुलिन के पेशेंट, आप लेट्स से इंसुलिन डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं और आप एम्फीटामिन्स भी ले रहे हैं सिंथेटिक, रिमेंबर दैट स्टिमुलेंट, तो एम्फीटामिन प्लस इंसुलिन, क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देता है एम्फीटामिन। इफ एम्फीटामिन ये अल्कोहल से अलग हो गया, राइट। एम्फीटामिन प्लस इंसुलिन, इट हैज़ बीन टेकन, एक साल पूछा गया था इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ ये। तो क्या होगा, इंसुलिन का इफेक्ट कम हो जाएगा, इट डिक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, राइट। तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको इंसुलिन लेकर, और इंसुलिन नहीं लोगे तो आपको बेहतर पता है कि आपके साथ क्या क्या होता जाएगा। आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हो गए तो व्हाट वुड बी हियर। देन कोई था वो कोकेन एडिक्ट है, कोकेन के साथ वो निकोटीन भी ले रहा है, कोकेन के साथ आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन विच यूज्ड टू स्मोक कोकेन, और कोकेन के साथ उसने टोबैको भी मिला रखा है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट इज फॉर इंक्रीज्ड कोकेन एंड निकोटीन। और अगर कोकेन के साथ वो एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दे तो हाइपरटेंशन हो जाती है। कोकेन, ये दोनों मेंशन कर देता हूँ मैं, कोकेन प्लस निकोटीन, इट कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर defect, and cocaine plus what I was telling you, if a patient is having cocaine, और cocaine के साथ क्या ले रहा था वो, I forgot, right। इतना ही याद रख लें, चलो भाई, मैं कुछ बता तो रहा था आपको, how can I forget this one। कोकेन, निकोटीन हो गया, कोकेन के साथ और कौन सा एडिक्ट हो जाता है, कोकेन के साथ कोकेन हैज़ बीन स्मोक्ड विद निकोटीन, कोकेन एंटी डिप्रेसेंट बताया शायद, कोकेन प्लस एंटी डिप्रेसेंट, और कोकेन और एंटी डिप्रेसेंट को ले लो तो हाइपरटेंशन हो जाती है। यस, कोकेन और एंटी डिप्रेसेंट को ले लो तो हाइपरटेंशन हो जाती है। कोकेन प्लस एंटी डिप्रेसेंट, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन। अगर देखो आप जब साइड बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो शायद ये क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाए वहाँ पर। तो अगर आप अल्कोहल के साथ कुछ एब्यूजिव ड्रग ले लो या कॉम्बिनेशन ऑफ एब्यूजिव ड्रग ले लो तो उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच आई एम मार्किंग हेयर इज दीज टू, एंटीहिस्टामिन्स और एस्प्रिन वाला, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका अल्कोहल एडिक्शन। कल आपका आएगा फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ फीमेल, स्टेरॉइड वगैरह के, और कैसे कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ द डे। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा एज बीइंग यू आर गुड स्टूडेंट, और टुमारो वुड बी द फाइनल लेक्चर ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।